बताया था कि like from the initial jump in the graph, like how many dots you get that jump from afterwards, उससे पता चलता है. But sometime, in fact not sometime, most of the time examiners give you values of the ionization energies instead of the graph. तो अब होता ही है कि एक ही चीज होती है, डिफरेंट एंगल से पूछी जाती है, तो समटाइम स्टूडेंट फील करते हैं शायद हमने ये चीज मिस कर दी, क्लास में नहीं पढ़ी. वही चीज अगर एग्जामिनर आपको वैल्यूज लिख के दे दे आयनाइजेशन एनर्जीज की, तो आप उसका एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं. तो वो भी अगेन इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट मेजर जंप और गैप इन आयनाइजेशन एनर्जीज refers to group number. So first major jump or gap in the ionization energies. अब उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ. The way the question is placed in it. So suppose if there is this element, suppose T again, and it has like you're given with the ionization energy values of it, first, second, third, fourth, इस तरह से उसकी ionization energy values given है. Fifth, for instance. अगर एक एलिमेंट टी की आपको कुछ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, आई वुड जस्ट पोज ऑल दीज वैल्यूज. लेट्स से इफ इट सेज 400, अस्सलाम वालेकुम अभी राज, एंड देन 850, then it says 1200, and then it says 8000, and then it goes like 10,000. तो क्या वो पेन चाहिए? कोई बात नहीं, पेज ले लें. पेज मैं आपको दे देता हूँ. आप इनकी ब्लैंक एक साइड उस पर लिखो, ठीक है? अच्छा, again, so this ionization energy concept that we sort of completed yesterday, this thing is asked in MCQs a lot. What you can find from the group of an like graph of the successive ionization energy, you can actually do it by the given values in the question. वही चीज है, सिर्फ एक डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता, तो आई थॉट कि मैं इसको भी क्लास में पॉइंट आउट कर दूंगा. टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड इट, या it is going on. So the first major jump or gap in the ionization energies, in fact, is the group number of the element. अब if instead of graph, if I get this element T और उसकी first, second, third, fourth, fifth ionization energy की values मुझे given है. First means like पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने वैलेंस शेल से and it took 400 kilojoules. फिर second के लिए 850, 1200. अब we have studied that the ionization energy values increase successively, बढ़ती जाती हैं. अब आप लोग इन वैल्यूज को देख के मुझे बताएं, where do you find this first major jump here? Major jump. Major jump का मतलब है कि आपको clearly mark different नजर आएगा वहां. Third. That's in third and fourth, right? Because I've taken the ionization energy value from 1200 only, right, to the 8000. ठीक है? So it's about 7000 kilojoule का difference. उससे पहले it's like 400, that also is about 400 and so forth. But यहाँ जो major difference और jump नजर आ रहा है वो हमें between third and fourth नजर आ रहा है. That's the major gap or jump. अब इसका क्या मतलब हुआ? This element T had how many electrons in its outer shell? 3. 1, 2, 3. जब मैंने 3 electron निकाले, तो until I took away third electron, like I didn't have to put much energy. It was like in hundreds of kilojoules. But when I was taking fourth electron, that took about 8000. 1200 से 8000. That means कि वो electron उसके inner shell से जा रहा है. So outer shell had 3 electrons only. तो इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि अगर थर्ड एंड फोर्थ के बीच में जंप आ रहा है,
तो its group number would be 3. So this element belongs to group 3. लोअर नंबर वाला जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे इसमें थर्ड एंड फोर्थ में जंप आया तो ग्रुप 3, अगर आपको फिफ्थ और सिक्स्थ में जंप नजर आता है फर्स्ट मेजर तो ग्रुप 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब वी नो इन पीरियोडिक टेबल वी हैव टोटल 8 ग्रुप्स, इनफैक्ट 8 ग्रुप्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? टोटल कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 8। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कुड बी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप 8 से है, नोबल गैस है कोई हीलियम को छोड़ के, तो उसके आउटर शेल में नेचुरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर हमें 8th और 9th के बीच में मेजर जंप नजर आएगा, ठीक है। लेकिन 8 9 के बाद कोई मेजर जंप नहीं नजर आएगा, बिकॉज वी नेवर हैव 9 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ एन एटम। तो रूटीन में जो आपको मिलते हैं, यू गेट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 2 3 4 5। तो लाइक फर्स्ट मेजर जंप्स आपको 5th 6th 7th तक ही मैक्सिमम नजर आएंगे। नोबल गैसेस की तरफ कम ही जा रहे होते हैं एग्जाम में। तो ये एक चीज थी जो कल हमने ग्राफ से की। ग्राफ में सेम थिंग, फॉर इंस्टेंस वुड हैव बीन गिवन लाइक 3 डॉट्स और उसके बाद एक जंप। अब 3 डॉट्स के बाद जब थर्ड और फोर्थ में जंप है, फॉर इंस्टेंस इफ दिस लाइक 1200 और ये 8000 है, तो भी हम यही चीज अप्लाई कर रहे थे कल। अब वो वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, सेम थिंग, बट अगेन डिफरेंट वे टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ये चीज रहती थी कल। अब हमारा ये आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट है। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछने में आप लोगों को एक दफा इसको रिकैप करता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी की लाइक ये रिकैप जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद भी अपने माइंड में करना होता है। जब आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं ना, लेट्स से कि आज आपने नोट्स रिवाइज किए एंड बाय टुमारो लेट्स से इफ यू आर डन विद दिस टॉपिक, तो उसके बाद रिवीजन क्या होती है? रिवीजन इज नॉट एवरी टाइम यू आर सिटिंग विद योर नोटबुक इन फ्रंट एंड यू आर टर्निंग द पेजेस अराउंड। The best revision is कि आपकी नोटबुक बंद है and randomly you're sitting somewhere and you all of a sudden decide कि मैं next 5 minutes में ionization energy को revise करना है मुझे। So you start with definition in your mind. Recall the unit for the ionization energy. Try and think is it exothermic, endothermic. Then you need to know the factors which control ionization energy, right? कि atomic size है, nuclear charge है, shielding है, फिर उसके बाद वो स्पिन पेयर वाला एक फैक्टर मैंने बताया था। एंड देन ट्राई एंड फिगर आउट द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड विद रीजंस, कौन सा फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। उसके बाद ग्राफ्स, you should know how many graphs you have in your syllabus. You should know it's like first ionization energy graph of third period elements, फिर successive ionization energy of element, फिर किस ग्राफ का फायदा क्या है। फर्स्ट ionization energy graph of third period element में there were 2 exceptions, ठीक है, जो एनॉमलीज में बता रहा था। और एनॉमलीज और एक्सेप्शंस कहाँ पे थी? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में थी। रिकॉल इट्स रीजन कि 3p1 ऑफ एल्यूमिनियम इज फर्दर अवे देन 3s2, सो इट टुक लेस एनर्जी कंपेयर टू मैग्नीशियम। फिर फास्फोरस सल्फर का रिकॉल करें आप माइंड में, फास्फोरस इज 3p3, सल्फर इज 3p4, स्पिन पे रिपल्शन है, उसमें कम एनर्जी चाहिए, फास्फोरस इज मोर स्टेबल। फिर उसके बाद आप जो कंटिन्यूस आयनाइजेशन एनर्जी वाला ग्राफ मैंने बताया था आप लोगों को कल एंड पे, कि टॉप वाले एलिमेंट्स नोबल गैसेस, लोअर मोस्ट ग्रुप 1, और फिर फ्रॉम रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। और फिर ये चीज़ के जी किस तरह से आप ग्रुप नंबर फाइंड कर लेते हैं बाय लुकिंग एट द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट, राइट। अच्छा, जब आप सारी ये चीज़ रिकॉल कर लेते हैं और आपको इनके आंसर्स भी आ रहे थे माइंड में, दैट मीन्स योर टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग। Then the next most important thing after that would be you need to practice questions. जैसे जो वर्कशीट मैंने शेयर की आप लोगों से, उसको ओपन कर ले, that would be the best revision and reinforcement. तो ये चीजें हैं जो आपने करनी है खुद से। अच्छा, अब इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा ऑनलाइन वाले पूछ लें, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। हमारा बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है, उस पर आप। All right. अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उसमें sometimes we get this graph in MCQs and because it's such an easy and small thing I don't give it much time.
I've seen students quite knowing it well. तो मैं इसको सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ. That is deflection of subatomic particles in magnetic field. अच्छा, सबएटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? एनीबॉडी कुड टेल मी? किन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लाइक जो एटम के अंदर होते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करें, चार्ज्ड प्लेट से, तो हाउ डू दे सॉर्ट ऑफ शो डिफ्लेक्शन फॉर इंस्टेंस? अब उसके लिए द वे दे पुट द क्वेश्चन मोस्टली इन एमसीक्यूज, आई वोंट ड्रॉ 4 ग्राफ्स. मैं आप लोगों को 2 ग्राफ स्केच करके बताता हूँ और आप लोगों ने डिसाइड करके मुझे बताना है कि which graph apparently is correct. So one plate is positive, the other one is like negative plate, and we pass these electro subatomic particles from it, and they sort of strike on a sensor in front. उसके ऊपर वो जाके strike करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा particle कहाँ जाके strike कर रहा है. Now let's say the graph was this. And it shows N for neutron, E for electron, P for proton. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल को हम इन्हीं सिंबल से दिखाते हैं. उसके बाद we have another graph again which shows these charged plates. And then we show the particles again pass through the plates and the sensor records it. Neutron, proton, electron. Now I'll make this graph 1. This is graph 2. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि any of these 2 graphs, 1 and 2, which shows sort of very wrong deflection of particle. Very wrong means के एक particle है, उस पर negative charge होता है, आपने जैसे पढ़ा, और उसको मैंने negative की तरफ दिखा दिया. Like electrons carry negative charge, right? Protons have positive charge. Neutrons do not have any charge. तो इन दोनों ग्राफ में से किसी में कोई wrong deflection दिखाई हो? पहला वाला. पहले वाले में रॉन्ग डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और उसको मैंने पॉजिटिव पे डिफ्लेक्ट किया है. हमजा, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, उनको मैंने नेगेटिव पे डिफ्लेक्ट किया है. तो आई हैव नॉट शोन रॉन्ग डिफ्लेक्शन एक्चुअली. दूसरे वाले में प्रोटॉन पॉजिटिव एंड दे आर स्टिल डिफ्लेक्टिंग टू द नेगेटिव प्लेट. Electrons are negative and they're deflecting towards the positive plate. So technically, basically deflections are correct in both graphs, but still one of these two पहला ग्राफ गलत होगा is not correct. क्योंकि हेवियर पार्टिकल एक होता है और एक लाइटर जो ज्यादा ऊपर निकल जाता है. So which graph is not correct? Online हमजा आपने आंसर करेक्ट दे दिया, लेकिन कोई और फर्स्ट ग्राफ इज नॉट करेक्ट. देखो, इसलिए मुझे केमिस्ट्री पसंद आई थी बचपन में. दिस इज नॉट करेक्ट. अब आप लोग जो बैठे हैं फेस टू फेस वाले बताएंगे, आबिर नहीं बताएंगे. अमार, सारा, मायरा, आप लोग बताओ. फर्स्ट ग्राफ करेक्ट नहीं है, सेकंड ग्राफ करेक्ट है. बहुत इजी है. कम ऑन. अच्छा, मैं क्वेश्चन चेंज करके पूछ लेता हूँ. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, विच पार्टिकल इज बिगर? बड़ा कौन होता है? प्रोटॉन. इट्स अबाउट 1900 टाइम बिगर देन इलेक्ट्रॉन. तो व्हेन यू गॉट सेम चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, राइट, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, राइट? तो लाइटर पार्टिकल को जब आप पास करोगे
it must show much greater deflection than proton, right? So what's wrong with graph 1? It is actually sort of showing same deflection. Like this angle of deflection is roughly same for electron and proton. So this is not correct. That graph is correct. इसको अपने notes में add कर ले कि why second graph is correct. It is because electrons. सिंपल फिजिक्स से प्रोटॉन हैवियर होता है तो आराम से नीचे डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लाइटर वो पहले ऑलरेडी अपने इंक्लाइन शुरू कर देता है, पहले वाला पहले भी start कर देता है, exactly. Actually heavier particle is not much affected by the field, तो yes sir, उसकी डिफ्लेक्शन स्लो भी होती है और इलेक्ट्रॉन में ग्रेटर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मींस कि उसकी डिफ्लेक्शन स्टार्ट भी जल्दी हो जाती है और ग्रेटर एंगल पे भी होगी. सो इलेक्ट्रॉन्स मस्ट शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन. So this graph is not correct because it shows equal deflection in electrons and protons. ठीक है, ये बड़ा एक बेसिक सी चीज है जो एमसीक्यूज में कभी आ जाती है और इसको कई स्टूडेंट डाउट में भेज देते हैं कि सर ये इसने इसको ठीक क्यों बोल दिया, और ऑल्दो डिफ्लेक्शन चार्जेस तो ठीक हैं, दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन से दिखाया हुआ और उधर भी प्रोटॉन. द अदर ग्राफ्स नेचुरली एमसीक्यूज में तो 4 ग्राफ्स होते हैं, तो बाकी जो ग्राफ्स होते हैं उसमें फिर एंगल डिफ्लेक्शन ही गलत होती है. लाइक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पे डिफ्लेक्ट दिखाया होगा और प्रोटॉन को पॉजिटिव साइड पे. दिस इज इट. अब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा कंप्लीट है. जैसे मैं वर्कशीट की बात कर रहा था, आप लोग उसका प्रिंट लेके उसको स्टार्ट करें. नेक्स्ट हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे जो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस रखी हुई हैं उसमें हम लोगों ने ये वर्कशीट से डिस्कस करनी है सारी टॉपिकल. नहीं कल नहीं है, कल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सैटरडे, और उसकी टाइमिंग थोड़ी सी शायद अर्ली होगी डे में, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा डिस्कस करके सबसे. I guess now we can start on with the next chapter, that's chemical bonding, right? अच्छा, जो बॉन्डिंग का चैप्टर है हमारा उसमें काफी सारे टॉपिक्स तो ओ लेवल के हैं जो आपने IGCSE ओ लेवल में पढ़े हैं, लाइक बॉन्डिंग एज कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, राइट. फिर डायमंड, ग्राफाइट एटसेट्रा, वो स्टेट्स ऑफ मैटर में चला जाएगा. बट देयर आर मेनी न्यू टॉपिक्स इन दिस चैप्टर बॉन्डिंग में. और इनफैक्ट आपके जितने भी चैप्टर्स हैं AS में और A लेवल में अदरवाइज, दे टेक्निकली स्टार्ट फ्रॉम O लेवल, but in A level in every chapter you study maybe 30-40% new topics. In some cases you study 80% new topics or 70% new topics. So bonding में we have about 50% previous and 50% new topics. ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो न्यू कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स A लेवल के हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, because examiners focus also is the new concepts that you learn in it, like shapes of molecules, intermolecular forces, hydrogen bonding, permanent dipole, dipole forces, फिर डेटिव बॉन्ड, इसमें एक नया टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं. तो जो ओ लेवल की चीज़ है उसको थोड़ा हम कम टाइम लगाते हैं और ज़रा क्विकली गो थ्रू कर लेंगे सो दैट वी कुड गिव मोर टाइम टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स. तो केमिकल बॉन्डिंग में द फर्स्ट थिंग इज दिस आयोनिक बॉन्ड, राइट. उनकी डॉट क्रॉस डायग्राम्स और सारा वो, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. आज इसको करेंगे, फिर नेक्स्ट हम कोवलेंट बॉन्ड पे जाएंगे. तो फर्स्ट वन इज लाइक आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड का एक अल्टरनेट नेम भी है, वी कॉल इट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आल्सो. ठीक है, ये समटाइम एग्जामिनर जो लेस यूज टर्म्स होती हैं वो यूज कर लेते हैं, ऑल्दो दे आर इन सिलेबस, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन होती है, लेकिन आई ट्राई एंड मेंशन बोथ. इट्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. लाइक अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में कह देता है कि द बॉन्ड इन NaCl इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं आपसे. ठीक है, मतलब यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज कि परहैप्स NaCl में ऑल ऑफ सडन कोई नई बॉन्डिंग डिस्कवर हुई. इट्स आयोनिक बॉन्ड इन शॉर्ट, व्हिच इज नया चैप्टर है.
हमजा बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें मेनली तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था और आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक था, which we पहले are चैप्टर done। सब खत्म हो गया। वो कंप्लीट हो गया। और फिर ओके बॉन्डिंग सर। इज स्लाइटली लेंथी चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा शॉर्ट चैप्टर है, इसमें जरा ज्यादा टॉपिक है, तो ये नया चैप्टर है। सही है सर। अच्छा, ionic bond is like formed by the complete transfer of electron from one atom to the other atom. We would avoid writing metal to non-metal, जैसे O level में आपको बताते हैं कि ionic bond is made by transfer of electron from metal to non-metal। लेकिन A level में आप लोग देखेंगे कि कुछ metals जो हैं वो covalent bonding भी कर लेती हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो we would sort of stick with the safer version of definition that it is bond formed by complete transfer of electron from one atom to the other atom। Like in the definition of ionic bond, you must include this complete transfer word, ठीक है। अब इसमें डॉट क्रॉस डायग्राम्स हैं जो आपके सिलेबस में है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एटसेट्रा। बाइनरी सॉल्ट्स की, बाइनरी सॉल्ट्स हम उनको कहते हैं विच आर मेड फ्रॉम 2 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 एलिमेंट्स की डॉट क्रॉस डायग्राम आपको आयोनिक कंपाउंड में नहीं आएंगी, सिलेबस में नहीं है। बाइनरी मीन आयोनिक कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट्स, जैसे NaCl है, एक सोडियम एक क्लोरीन। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, उनके नंबर फर्क हो सकते हैं। लाइक कैल्शियम क्लोराइड में 1 कैल्शियम 1 क्लोरीन, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन आर 2, एलिमेंट 2 ही होंगे। तो वो हमारे सिलेबस में। अब जब 2 एलिमेंट डायग्राम सिलेबस में, तो वी स्टिक टू द 2 ब्रैकेट डायग्राम, ठीक है। ओ लेवल में एक्चुअली ओ लेवल IGCSE में बॉन्डिंग कुछ अर्ली ईयर्स में पढ़ते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है कि टीचर्स बड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। लाइक NaCl में पहले सोडियम बना के दिखा देंगे कि दिस इज सोडियम एट 281 विद 1 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल। फिर आपको वो क्लोरीन बना के दिखाएंगे 287, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और फिर आपको बताएंगे कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज करेगा, ये उसको डोनेट करेगा, तो वो 8 पूरा हो जाएगा। फिर वो फाइनल डायग्राम बना के बताएंगे कि इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8। वी डोंट डू दैट। हम लोग पेपर में जब NaCl के डॉट क्रॉस आएगा, तो आपने जो फाइनल डायग्राम है वैलेंस शेल के साथ बस वो बनानी। Until examiner says के draw inner shells, इनर शेल कह दे तो फिर बनाए, वरना नहीं बनाए। और गोल गोल सर्कल्स भी बनाने की जरूरत नहीं हर दफा। आई एम ट्राइंग टू टीच यू व्हाट A level examiners require and what saves time, and you need to try and learn it, because जो स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं था पेपर में, वो नॉर्मली उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो O level के मेथड्स को छोड़ते नहीं है अपने, तो उसमें ज़ाहिर टाइम वेस्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, if I'm supposed to draw NaCl dot cross diagram with valence electrons only in it, so I would still, as I said, draw 2 bracket diagram. Left hand side पे positive ion, right hand side पे negative ion, sodium and chlorine, and you could actually label the elements instead of circles. Sodium, chlorine, जो नेगेटिव आयन है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट इन आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहा होता है, ठीक है। तो क्लोरीन आउटर शेल हैड 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो लेट्स से कि अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे इन फॉर्म ऑफ क्रॉस, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड था, एंड सोडियम वुड हैव गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ रहा है दैट वुड बी लाइक अ डॉट मे बी। तो around the symbol you could actually label dot and cross, which are actually electrons in fact. सोडियम के आउटर शेल को कंप्लीट ड्रॉ करना अगेन रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका वैलेंस शेल इज मच मोर इम्पोर्टेंट। बट इफ यू फील अनकंफर्टेबल कि इसके इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, तो आप सोडियम बना दें 8 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास बच गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब आप सोडियम के ड्रॉ करेंगे, तो यू नीड टू देन ड्रॉ डॉट्स अराउंड इट, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स। So this is like just the valence electrons dot cross diagram of NaCl.
And as I said कि you don't need to draw circles, you don't need to draw inner shells unless asked. अगर क्वेश्चन में कहा है फिर तो इनर शेल्स बनाने हैं, फिर सर्कल्स ही बनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, अदरवाइज नहीं। ब्रैकेट्स पे चार्जेस बड़े क्लियर होने चाहिए, और जो नेगेटिव आइन है, आई रिपीट, उसको आपने बहुत क्लियरली बनाना है। योर डायग्राम्स शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग टू चेक, जंबल डब नहीं होनी चाहिए। डॉट और क्रॉस में बड़ा क्लियर डिफरेंस नजर आना चाहिए। I mean, we see diagrams drawn by students like these, छोटे छोटे क्रॉस, और पता भी नहीं चलता कि वो क्रॉस है या डॉट है। तो अब आपने सारे शेल्स बनाए, बहुत प्यारे प्यारे सर्कल्स बनाए, लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ही क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा, तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखें, जितनी स्पेस है उसको फुली यूज करें। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट बूस्ट्स अप योर कॉन्फिडेंस अबाउट द सब्जेक्ट आल्सो। जब आप छोटा छोटा लिखते हैं इस तरह से, ड्रॉ भी सही नहीं करते, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स कंफ्यूजन इन कॉन्सेप्ट। और ये चीज आप जब करते हैं करेक्शन केमिस्ट्री में, डायग्राम्स, डॉट क्रॉस, इक्वेशन बैलेंसिंग, फार्मूला राइटिंग, जो बच्चे इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उनको दे स्टार्ट लाइकिंग केमिस्ट्री। और इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप काम करें। ओ लेवल में जब मेरे पास को आता है स्टूडेंट, उसको मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कराता हूँ। अच्छा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल भी कर लेंगे, जैसे लाइक फर्स्ट वन, सेकंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2, राइट? तो magnesium would lose 2 electrons to oxygen, which is in group 6, and needs rather 2 electrons to complete itself. Like magnesium का proton number 12, oxygen is 6, 8. डॉट क्रॉस डायग्राम में हम ओ लेवल वाला कॉन्फ़िगरेशन को ही अप्लाई कर रहे होते हैं। सो मैग्नीशियम इज लाइक 2, 8, 2, ऑक्सीजन इज 2 and 6। तो ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, and that will bring 2 positive charge on magnesium. Or oxygen after gaining 2 electrons would rather become 2 negative. तो राइट हैंड साइड पे हम नेगेटिव आइन ड्रॉ करते हैं, 2 नेगेटिव। अच्छा, अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड वी शो देम विद क्रॉस। जो लेफ्ट हैंड डायग्राम है उसको डॉट से ड्रॉ करते हैं, राइट हैंड वाले को क्रॉस से ड्रॉ करते हैं। तो जो क्रॉस में दिखाऊंगा उसमें एक पेयर को आपने अनपेयर्ड कर देना है, ठीक है, और साथ उसके डॉट का पेयर बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल में इस चीज को इग्नोर किया जाता था, ए लेवल में नहीं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, सर दोनों उसको डॉट को पेयर कर लेते हैं। हाँ नहीं हमजा, वो ठीक नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। ऑक्सीजन के जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 2 विल बी पेयर्स, लाइक 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 पेयर्स, और एक पेयर को आपने ब्रेक करके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं दिखाएं, और उसके साथ मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स, लाइक योर डॉट एंड क्रॉस पेयर शुड बी क्लियर इन द डायग्राम। सर ये इस तरह हम क्यों करते हैं और पहले डिस्टेंट हाँ, तरीके से क्यों करते हैं? नहीं मैं बताता हूँ। एक्चुअली लाइक इसके लिए अगर किसी स्टूडेंट ने ऑक्सीजन को इस तरह ड्रॉ कर दिया कि 3 डॉट क्रॉस उसके इकट्ठे बनाए इस तरह, और मैग्नीशियम से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इस तरह, तो जैसे मैंने कहा ओ लेवल में इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ए लेवल के लिए ये ठीक नहीं है। उसकी रीजन है, इनफैक्ट इसी चैप्टर में आफ्टर आयनिक बॉन्ड यू स्टडी कोवलेंट बॉन्ड, उसमें भी डॉट क्रॉस होती है, शेयरिंग। इसमें ट्रांसफर है, उसमें शेयरिंग है। बट थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड यू स्टडी विल बी द डेटिव बॉन्ड, जिसका मैं नाम ले रहा था अभी। डेटिव बॉन्ड में क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम दे रहा होता है, और वो जाके पेयर करते हैं इकट्ठा, पूरा पेयर ट्रांसफर होता है वो। तो अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड कर रहा होता तो फिर वी वुड हैव ड्रॉन दिस, like same electrons in one pair is a dative bond which is not ionic or covalent, a different type of bond। इस वजह से उसको हम यानी बना सकते हैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से आयोनिक बॉन्डिंग है। तो आयोनिक बॉन्ड में एक्चुअली होता ही है कि जो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक मैग्नीशियम्स आउटर शेल हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड देन इट लूजेस द सेकंड इलेक्ट्रॉन। दोनों एक साथ नहीं लूज करता। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एक क्रॉस के साथ जाकर पेयर करेगा पहले,
फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके दूसरे क्रॉस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करेगा, ठीक है। सो टेक्निकली इट डजंट हैपन इवन कि दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट इकट्ठे जाके आप खुद पेयर बना के उधर चले जाएं, नहीं। तो एंड वी डोंट शो इट दैट वे, क्योंकि वो डेटिव बॉन्ड बन जाएगा, फिर नंबर कटेंगे। क्योंकि बहुत सी डॉट क्रॉस डायग्राम में इनफैक्ट हम बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। वन कंपाउंड में हैव आयोनिक कोवलेंट डेटिव ऑल 3 बॉन्ड्स, तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से पता चलती है हमें कि कहाँ डेटिव बॉन्ड बन रहा है, कहाँ कोवलेंट है, कहाँ आयोनिक है। तो जब हम डेटिव बॉन्ड पढ़ लेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट। बस आपने ये याद रखना है कि जो बॉन्डिंग पेयर है दैट हैज टू बी डॉट एंड क्रॉस। अच्छा, जो आपका डॉट है वो आप उसको क्लियर बना दें, शेडेड बना दें, इस तरह से डिफरेंट करने के लिए, ये आपकी चॉइस, इसमें कोई इशू नहीं है। दीज डायग्राम्स आर एक्चुअली डॉट क्रॉस डायग्राम्स, ये आपने याद रखना है। डॉट क्रॉस डायग्राम्स वर प्रेजेंटेड बाय साइंटिस्ट लिविस। आप लिविस मत याद रखें, लेकिन ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब और नेट से जब पढ़ते हैं तो अमेरिकन सिस्टम में AQA और डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस में they don't study Lewis dot cross diagrams. So they show the electrons with any different symbol they want. Like electron के लिए they use steric sign, stars, square, diamond, triangle सब use कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट करने के लिए सिर्फ। तो ये चीज़ें कैम्ब्रिज और एडेक्सल में अलाउड नहीं है, क्योंकि कैम्ब्रिज एडेक्सल में वी हैव डॉट क्रॉस डायग्राम्स विच आर गिवन बाय लिविस साइंटिस्ट, उन्हीं का मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कहीं उसको बना के एग्जामिनर उसको मार्क्स काटेगा तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नेट पे देखा तो उधर ऐसे। अच्छा, अब इसी तरह अगर कोई एक एग्जांपल आप बस और कर ले मेरे साथ। अगर एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल तो हम इसको नहीं कहेंगे, कंपाउंड में you have 3 atoms in it, like sodium oxide for instance, third one. तो इसके लिए भी we would draw 2 bracket diagram, ठीक है। like ये नहीं है कि आप सोडियम की 2 ब्रैकेट्स बनाएं फिर ऑक्सीजन की बनाएं, 2 ब्रैकेट, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, दैट्स इट। लेकिन जो नंबर ऑफ आयन्स हैं, like sodium is 2 here, you would write that 2 with the bracket out there. like sodium, एक सोडियम पे +1 चार्ज होगा and there are 2 sodium here, so I'll write 2 here with the bracket of sodium. और ऑक्सीजन पे -2 और उसके आउटर शेल में उसी तरह से फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से कि 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ रहे हैं। like 1 sodium can give 1 electron, so it will take 2 sodium to satisfy 1 oxygen. इस वजह से उसके साथ हमें 2 लिखना मस्ट। So out of 2 sodium, each one is 1 plus, 2 sodium will be 2 plus. Total positive charge or negative charge will always be equal in ionic compound, right? जैसे इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 2 plus 2 नेगेटिव हो रहा था, NaCl में 1 plus 1 नेगेटिव हो रहा था। ऑक्सीजन will always be like 2 negative when it goes for ionic bond. अब मैग्नीशियम एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो you don't need 2 magnesium here. But सोडियम के केस में sodium can give 1 electron, so it takes 2 sodium to react with oxygen. That's why it's like Na2O. ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। सोडियम के आउटर शेल में तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता तो वो 2 नहीं देगा। अगर आप लोग खुद से घर पे बाद में ट्राई कर सकें तो डू इट। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, दैट विल 4th एग्जांपल विल बी डूइंग इन क्लास लेटर। लेकिन अगर आप लोग रफ में पेंसिल से खुद बना लें तो दैट वुड बी ग्रेट। एल्युमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 है, 13, तो इसको आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक हो गया। चलो आई जस्ट एंड इट हियर, आपकी क्लास भी है नेक्स्ट। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह